چلیں جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمو کی تعریف یا ڈیفینیشن آف ڈیولپمنٹ آپ نے لکھنی ہے. کاپی پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ رکھا کریں پاس. ٹھیک ہے, اس کو لکھیں ڈیفینیشن کو. نشو نما سے مراد ایسی تبدیلیاں ہیں, نشو نما سے مراد ایسی تبدیلیاں ہیں جس میں وقوفی سماجی, اخلاقی, معاشرتی اور نفسیاتی تبدیلیاں ہوں. نشو نما سے مراد ایسی تبدیلیاں ہیں جس میں وقوفی سماجی, اخلاقی, معاشرتی اور نفسیاتی تبدیلیاں شامل ہوں. اب میں ون بائی ون ایک ایک کو ڈیفائن کر دیتی ہوں. جو کوگنیٹو یا وقوفی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کا تعلق آپ کے برین سے ہوتا ہے, آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے ہوتا ہے, آپ کے ادراک کرنے, آموزش کرنے, حافظے سے ریلیٹڈ یہ جو ہوتی ہیں, استدلال کرنے, یہ تمام چیزیں جو ہیں نا, یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ وہ ہوتی ہیں جو انسان کے اندر سمجھ, بوجھ, فہم و فراست پیدا کرتی ہیں, اور ایج کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے, جی. پھر جو اگلی ہے نا سماجی تبدیلیاں, یہ وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں بیٹا کہ جو ہم نے معاشرے میں چلنا پھرنا ہے, ہاؤ ٹو بیہیو. ٹھیک ہے, لوگوں کے سامنے اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, دوسروں کے ساتھ اچھے سماجی تعلقات بنانا, یہ دیز آر آل سوشل چینجز. ٹھیک ہے, مجھے نا یہ بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے جب میں کلاس میں انٹر کرتی ہوں نا ڈیورنگ لیکچر. اچھا جی, اور پھر اس کے بعد مورل چینجز آ جاتی ہیں, مورل ڈیولپمنٹس آ جاتی ہیں. اب جو مورل بیٹے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں نا وہ اخلاقیات ہیں, جس میں آپ کو پیرنٹس بتاتے ہیں, بچے کو شروع سے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ بڑوں کا احترام کرنا ہے, بڑے بات کر رہے ہوں تو آپ نے درمیان میں بولنا نہیں ہے, سلام میں پہل کرنی ہے. دیز آر آل مورل ڈیولپمنٹس. اور اسی طرح سے جو سماجی اور معاشرتی ایک ہی ہیں, میں نے وہ 2 دفعہ لکھوایا. اور نفسیاتی تبدیلیاں وہ ہوتی ہیں جو مثال کے طور پر آپ کو جو پیار, محبت, تحفظ اپنے والدین سے چاہیے ہوتا ہے, اپنے بہن بھائیوں کے درمیان, اپنے دوستوں کے درمیان چاہیے ہوتا ہے, یہ وہ چینجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹس, یعنی اس کا مطلب ہے کہ نشو نما اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں یہ ساری ڈیولپمنٹس شامل نہ ہو جائیں. آ گئی ہے سمجھ؟ ٹھیک ہے, چلیں جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. نمو سے مراد ترتیب وار اور مربوط تبدیلیوں کا ارتقائی سلسلہ ہے. کوئی بچہ بات کر رہا ہے؟ بیٹے بات کر رہا ہے کوئی؟ اپنے نا گھر والوں کو پلیز تھوڑا سا کہا کریں کہ جب کلاس ہو رہی ہو نا تو پھر اونچی نہیں بولنا. اچھا, آپ بتائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ بتایا کریں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کہا کریں کہ ہماری کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نا ذرا آہستہ بات کریں ضرور لیکن آہستہ کریں. ٹھیک ہے, جو نمو ہوتی ہے یا جو نشو نما ہوتی ہے دونوں ایک ہی لفظ ہے, یا نمو یا نشو نما. ہاں جی, نمو سے مراد ترتیب وار اور مربوط تبدیلیوں کا ارتقائی سلسلہ ہوتا ہے جس میں کیمیاتی اور کیفیتی, کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو دونوں قسم کی چینج آتے ہیں. کل بات ہوئی تھی کہ جو بالیدگی ہوتی ہے نا وہ کوانٹیٹیو ہوتی ہے, مقداری ہوتی ہے. ہم دوسرے کا قد بد دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ فرد کی تبدیلیاں صحیح ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا یہ کوانٹیٹیو پلس کوالٹیٹیو ہوتی ہے. اور اکثر اوقات یہ ایک معروضی میں بھی کویسچن آ جاتا ہے کہ جو بالیدگی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کس قسم کی ہوتی ہیں. آپ لکھیں گے وہ ہوتی ہیں قیمتی, یعنی مقداری تبدیلی ہوتی ہے.
और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो नशो नुमा में तब्दीलियां होती हैं वो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों तरह की होती हैं, यानी मिकदार भी होती है और साथ में क्वालिटी भी होती है। जैसे मैंने आपको कल एक मिसाल दी थी कि आप बाजार से चीनी लेने गए हैं तो आधा किलो चीनी जो है वो क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिव हो गई वो आधा किलो, और उसकी चीनी में कितनी अच्छी वो है वो उसकी क्वालिटी है। बाजू का चीनी थोड़ी सी फीकी होती है, बाजू का गंदी होती है, ऐसे ही है ना, तो वो उसकी क्वालिटी है। तो इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट होती है उसमें दोनों तरह की चेंजेस आती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये याद रखना है कि जो डेवलप जी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। हाँ जी, चलें आगे। ये आपको ना बुक से नहीं इतना ज्यादा मिलेगा, ये ज्यादा आप समझ के फिर पढ़ेंगे ना बुक को, फिर बात समझ में आएगी, ठीक है। हाँ जी, ये न्यू गर्टन जो है वो उसने बड़ा कुछ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के मुतालिक कहा हुआ है। न्यू गर्टन के मुताबिक तमाम लोग तमाम तर तजर्बात के नतीजे में अच्छी या बुरी तब्दीलियां हासिल करते हैं। ये जो हम कहते हैं ना तुम्हारे अंदर बड़ी बुरी आदत है, तुम्हारे अंदर बड़ी अच्छी आदत है, न्यू कर्टन कहता है कि ये जो तब्दीलियां होती है ना ये हम सीख लेते हैं। आपको पता है आमोजिश होती है, होते ही है ना, अच्छी अच्छे 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 दोस्त मिल गए हैं, पढ़ाई करने वाले दोस्त मिल गए हैं तो आपके किरदार में अच्छी तब्दीलियां आ जाएंगी। अगर कोई ऐसे ही मिल गए हैं जिन्होंने ना खुद पढ़ना है ना आपको पढ़ने देना, तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी होती है ना उसका इफेक्ट आता है, सोहबत का असर आ रहा होता है। न्यू गर्टन वही बात कर रहा है कि न्यू गर्टन के मुताबिक तमाम तर तजर्बात के नतीजे में अच्छी या बुरी तब्दीलियां हासिल करते हैं। चूंकि फर्द के जहन में तमाम वाकयात नक्श होते हैं, जो कुछ आप देख लेते हैं, जो कुछ आप लर्न कर लेते हैं वो आपके दिमाग में नक्श हो जाता है, ठीक है। और लिहाजा इसलिए अफराद इन तजर्बात के नकूश से ही मुतासिर होकर नए वाकयात हालात में ज्यादा बेहतर तरीके से इजहार करते हैं। बच्चे को हम अलिफ बे सिखाते हैं, ठीक है। अब वो जब अलिफ बे सीख लेता है फिर उसे उस अलिफ बे की मदद से छोटे छोटे अल्फाज सिखाना शुरू करते हैं। जब वो अल्फाज सीख लेता है तो जुमले सिखाना शुरू कर देते हैं। बात समझ आई है कि वो नक्श जो होते हैं जो कि सीखे गए होते हैं, उन्हीं नकूश से मुतासर होकर जब कोई नए हालात वाकयात होते हैं उसको हम ज्यादा बेहतर तरीके से उसमें एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। आ गई है समझ? खैर जब मैं फायजा, ये फिजा है कि फायजा है, इसको एंटर कर लूं। हाँ जी, फिर ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना बच्चे, ये सारी उम्र चलता है। पैदाइश से ये यानी पैदाइश से पहले से ये स्टार्ट होता है और जब तक आप लोग अल्लाह को प्यारे नहीं हो जाते तब तक ये जारी रहता है। पैदाइश का ये जो नशो नुमा का अमल है ये तमाम उम्र जारी सारी रहता है, और जो बालिदगी का अमल होता है वो एक खास स्टेज पर आकर रुक जाता है। जैसे जवान जब आप हो गए हैं, आपके इनर बॉडी के जो पार्ट्स हैं और बाहर की जो ग्रोथ है वो एक स्टेज पर आकर रुक जाती है, ऐसा ही होता है। ये मैं आपको डिफरेंस इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसलिए साथ साथ इन बातों को आपने जहन में रखना है कि ग्रोथ में क्या होता है और डेवलपमेंट में क्या होता है। अच्छा, इसी अब ये जो डेवलपमेंट होती है ना इसमें चूंकि कैफियती और कीमती दोनों तरह की तब्दीलियां आती हैं और ये तब्दीलियां आमोजिश की वजह से आ रही होती हैं। जैसे आपका हाथ है एक, जब उसमें पुख्तगी आ जाती है ना तो आप बच्चा पेंसिल इजीली पकड़ लेता है। आप क्यों नहीं एक 6 माह के बच्चे को पेंसिल पकड़ा के लिखवा लेते? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसका हाथ पुख्ता नहीं हुआ होता, उसके अज़ाब पुख्ता नहीं हुए होते। लिहाजा निज़ाम असाब में पुख्तगी पैदा होने पर फर्क पढ़ना लिखना सीखना शुरू कर देता है। इसी तरह जैसे जैसे आपके ब्रेन के पार्ट्स जो है निज़ाम असबी के असाब जो हैं
वो पुख्ता होते चले जाते हैं तो आप में ज़हनी और समाजी महारतें जो हैं उनमें चेंजेस पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बच्चा है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो इसीलिए सोच समझ कर जवाब नहीं देते क्योंकि उनमें चालाकी नहीं होती, उनकी वो जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो जितनी को होती है वो उसी के मुताबिक जवाब देते हैं। जबकि आपकी एज के जो बच्चे हैं वो सोच समझ के जवाब देते हैं। ऐसा ही है। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी, जिस तरह से बालिदगी की इस्तिलाह को कई मायनों में इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह नमू की इस्तिलाह को भी हम कई मायनों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अमले अमोजिश, यानी हम देखते हैं कि अमोजिश का मतलब होता है सीखना। आपने पढ़ा हुआ है ना फर्स्ट ईयर में। अब होता ये है कि जैसे 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 आपकी बालिदगी जो होती है ना वो हो रही होती है, तो उसी के साथ साथ आपकी अमोजिश भी जो है ना वो हो रही होती है। तो हम बाज औकात नमू अगर किसी की देखनी हो तो हम देखते हैं कि फर्द में प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैसा है, कैसा सीखता है ये। जैसे वो बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनमें डेवलपमेंट ऑफ जो होती है ना डेवलपमेंट, वो बहुत स्लो होती है। अगरचे उनके कद बहुत बढ़ गए होते हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? क्योंकि शायद, हाँ, क्योंकि वो उसकी वजह ये होती है कि ये अल्लाह की तरफ से होता है कि उनकी वो जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो वैसे नहीं हो रही होती जैसे कि नॉर्मल बच्चों की हो रही होती है। हाँ जी बेटा, PSFA2 आपने अपना माइक जो है ना वो बंद किया हुआ है, उसको अनम्यूट करें तभी मेरी आवाज आप तक आएगी। कोई जो इस आप में से कोई इसका दोस्त है तो इसको मैसेज करे कि अनम्यूट करें। हाँ, उसे कहो कि अपना जो माइक है इसको अनम्यूट करेंगी तो मेरी आवाज उस तक पहुंचेगी। अच्छा जी, एक तो हम नशोनुमा की इस्तिलाह को हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग से चेक करते हैं। हम कहते हैं फर्द में प्रोसेस ऑफ लर्निंग कितना है। आ रही है? अब तो आएगी। अब तो वो आपने अनम्यूट कर लिया है, पहले आप म्यूट करके बैठी हुई थी। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक और चीज है जिससे कि हम डेवलपमेंट का अंदाजा लगाते हैं, वो ये होती है उम्र की पुख्तगी, एज मैचुरेशन। उम्र की पुख्तगी, पुख्तगी जो होती है ना बेटा, ये ऐसी तब्दीलियां होती हैं जो फर्द में मुनज़्ज़म, बाज़ाब्ता, पेचीदा और पायदार और मुतवाज़न तब्दीलियां पैदा करती हैं। जैसे सपोज एक बच्चे ने चलना है, 6 माह की उम्र में आप उसकी टांगों की मालिश करते रहें, उसको खड़ा कराते रहें, चूंकि उसकी टांगों के अज़ा में पुख्तगी नहीं है, वो खड़ा नहीं हो सकेगा। और ये अल्लाह की तरफ से है कि आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो बच्चा जैसे जैसे उसकी टांगों के अज़ा जो है मजबूत होते चले जाएंगे, उसमें पुख्तगी पैदा होगी, तो आप बेशक उसकी टांगों की मालिश करें या ना करें, बच्चा एक स्टेज आएगी खुद खड़ा होने की कोशिश करना शुरू कर देगा। ऐसा ही है। तो इस चीज को हम कहते हैं पुख्तगी। ठीक है। आप बच्चे के हाथ जब पुख्ता होते हैं, पुख्ता जो होती है ना पुख्तगी, वो मजबूती के मायनों में है। बच्चे की जुबान के अज़ा जब पुख्ता होते हैं तो ही वो बोल सकता है, और जब तक वो पुख्तगी नहीं होती, और पुख्तगी अंदर से होती है, ग्रोथ से होती है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से है ये सारे सिलसिले। तो जब बच्चे की जुबान के अज़ा पुख्ता हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि हमारा तमाम का तमाम जो सिस्टम है बॉडी का, वो अटैच होता है हमारे ब्रेन के साथ। अब बेटा ब्रेन ब्रेन जो है ना वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। आपने कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बातचीत करनी है, आपने कैसे खाना है, आपने कैसे बिहेव करना है, ये तमाम चीजें अंडर ब्रेन के अंडर है। आपने पढ़ा था ना, न्यूरॉन्स जाते हैं और आते हैं और ब्रेन हमें हदायत देता है, और अगर अल्लाह ना करे ब्रेन पे चोट लग जाए तो फर्द जो है वो होश में नहीं होता, उसे ना खाने पीने का होश रहता है ना कुछ और। ये तमाम चीजें इस बात को जाहिर करती हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो हमें कंट्रोल कर रहा होता है। हाँ जी नूर 348, आपने अपना माइक म्यूट कर लिया है, उसको अनम्यूट करें। हाँ जी, आप क्यों करते हैं बेटे ऐसे? आप लोग क्लास के दौरान जो है ना वो फिर मुझे डिस्टर्ब भी करते हैं। ना किया करें इसको बात।
तो हाथ अपने दूर दूर रखा करें, ठीक है। हाँ जी, लेक्चर की तरफ ना हमेशा मुतवज्जो होते हैं, और तो मुतवज्जो होने का एक ही तरीका है कि पूरे अटेंटिव होकर नाश्ता करके बैठे हो ना, फिर तो आप मुतवज्जो होंगे। और अगर आपने नाश्ते ना किए हो, बेड से उठ, हाँ तो गलत बात है ना, बेड से उठ के बैठ जाएंगे तो फिर तो ऐसे ही होगा। अच्छा जी, अब ये जो उम्र की पुख्तगी होती है ना, ये हर सतह और उम्र की पुख्तगी के नतीजे में बच्चे की सलाहियतों में चेंज आता चला जाता है। जैसे जैसे फर्द के अज़ा पुख्ता होते हैं, वैसे वैसे फर्द के किरदार में चेंज आता है। बच्चे, बालिग, बूढ़े, उधेड़ उम्र होते हैं, जो जरा बुढ़ापे की तरफ हो, यंग हो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े हो रहे हो। बूढ़े अफराद की सोचों में फर्क होता है। इन सब की क्यों फर्क होता है? एक यंग नौजवान, एक बच्चा, एक उधेड़ उम्र अफराद और एक बूढ़ा, इनकी सोच में फर्क क्यों होता है सोचने के अंदाज में? ड्यू टू मैचुरेशन, ड्यू टू पुख्तगी, ठीक है। क्योंकि जाहिर है कि जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, आपके तजर्बात आप हासिल करते चले जाते हैं, आपकी लर्निंग होती चली जाती है। फिर एक और तीसरी चीज है जो कि हमें डेवलपमेंट को के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस इस्तिलाह को भी, और वो है वज़ाइफ या फंक्शन। अब आपकी वज़ाइफ होते हैं कि ऐसी ऐसे अमाल, ऐसे अफ़ाल जिनको कि आप सर अंजाम दे सकें। जैसे आप कॉग्निटिव, वकूफ़ी, मुआशरती, ज़ाती, अखलाकी वज़ाइफ जो हैं, ये तमाम के तमाम अगर इनकी डेवलपमेंट हुई हुई है, अगर इनकी अंदर ग्रोथ हुई हुई है, तो आप अपने माहौल को बहुत आसानी के साथ टैकल कर लेंगे। जैसे आप कॉलेज आते हैं, अगर आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी हुई हुई है, तो आप क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, आप दोस्तियां भी निभा रहे हैं, आप पेपर्स भी दे रहे हैं, आप इखलाकियात को भी मद्देनज़र रखते हैं, आप अपनी ज़ाती दिलचस्पियों को भी लेके साथ साथ चल रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें जब आप साथ साथ लेके चलते हैं, तो ये फंक्शंस को जाहिर करती हैं कि आप इस काबिल है, आपकी डेवलपमेंट, कि आप इन तमाम वज़ाइफ को देने के काबिल हो चुके हैं। बात समझ आ गई है बेटा? अब कोई भी क्वेश्चन जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, वो मेरे से पूछें, मैं फिर ताकि देखूं कि कितने बच्चों को समझ आई है। हाँ जी, हाँ जी फिजा, और सवाल जी किसका? न्यूगर्टन, न्यूगर्टन है। न्यूगर्टन ये कहता है बेटा, ये बुक में भी लिखा हुआ है, न्यूगर्टन के मुताबिक लोग तमाम तर तजर्बात के नतीजे में अच्छी या बुरी, ये साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। वैसे ये ज्यादातर जो लोग हैं ना, ये सोशल साइंसेस के साथ ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। नफ्सियात के साथ, जैसे सोशियोलॉजी हो गई, सोशल वर्क हो गया, इनको सोशल साइंसेस कहते हैं। न्यूगर्टन के मुताबिक तो लोग तमाम तजर्बात के नतीजे में अच्छी या बुरी तब्दीलियां हासिल करते हैं, चूंकि फर्द के जहन में तमाम वाकयात के नकूश सब्त हो जाते हैं। यानी जो भी हम चीजें, अच्छी या बुरी तब्दीलियां हम सीख रहे होते हैं ना, वो हमारे जहन में नक्शे बना रही होती हैं। और जब एक दफा अफराद के तजर्बात नक्श हो जाएं, तो वो नए हालातों, वाकयात में ज्यादा बेहतर अंदाज से काम कर सकता है। मैंने इसकी मिसाल आपको बेटे ऐसे दी है कि एक बच्चा, जिसे हम अलफ सिखाते हैं, अलफ सिखाते हैं एक बच्चे को, वो फिर उसी अलफबे से हम उसे छोटे छोटे अल्फाज बनाना सिखाते हैं, और फिर अल्फाज से हम जुमले बनाना सिखाते हैं। क्यों नहीं आ रही बेटा? मैं तो पकड़ के बैठी हुई हूँ। हाँ जी, आप देखें, आ रही है बेटे? हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे एक बच्चा है, आ रही है? सबको आ रही है? मैं आपको न्यू गर्टन के तजर्बात की मिसाल ऐसे दे रही हूँ कि एक बच्चा जिसे कि आप अलिफ बे सिखाते हैं, वो बिल्कुल अभी मसलन प्ले ग्रुप का बच्चा है,
آہستہ آہستہ وہ الف بے سے چھوٹے چھوٹے الفاظ بنانا سیکھتا ہے، اور الفاظ بنانے کے بعد وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے بنانا شروع کر دے. یہی الف بے کے نقوش جو ہوتے ہیں وہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ ان سے الفاظ بنا لے، اور یہی چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہوتے ہیں یہی اس کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے اور پھر اس سے بڑے بڑے جملے جو ہے وہ لکھ سکے. ٹھیک ہے، ہاں جی، اور کوئی کوشچن؟ آگے پڑھاؤ پھر میں. چلے آگے ہے جی ڈیولپمنٹ، ڈیفینیشن آف میچوریشن، پختگی کی تعریف. پختگی، اب یہ انڈر لائن کر لیں پلیز اس کو. پختگی سے مراد فرد کا ان امور، امور ہوتے ہیں کام، ان امور کو سر انجام دینے کے قابل ہو جانا ہے جو اس عمر کے لیے ضروری ہوتے ہیں. یہ امور یا یہ کام جسمانی اور ذہنی دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں. یہ ایک فرد کی خواب دیدہ ہوتی ہیں سوئی ہوئی، خواب دیدہ صفات کو ظاہر کرنے کے لیے اندرونی بلوغت یا پختگی کے درجے کو ظاہر کرتے ہیں. جو پختگی ہوتی ہے نا بیٹا، یہ ذہنی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی پختگی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں آپ کے جسمانی اعضاء پختہ ہوں گے تو آپ چل پھر سکتے ہیں، حرکت کر سکتے ہیں، جبکہ ذہنی پختگی کا مطلب ہے کہ جیسے اب آپ سیکنڈ ایئر میں آ گئے ہیں، اگر آپ ان کانسیپٹس کو سمجھنے لگ جائیں تو ذہنی پختگی ہے. اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پختگی نہیں ہے، ابھی آپ اس پختہ نہیں ہوئے اس کے لیے. ٹھیک ہے، اور لرننگ سے یہ پختگیاں جو ہے نا وہ مضبوط ہوتی ہیں. سمجھ آئی ہے ڈیفینیشن کی؟ ہاں جی. یہ جو پختگی ہوتی ہے نا، یہ جس وقت بچے جو ہیں وہ مثلاً بچوں کے رینگنے، گھٹنوں چلنے، بیٹھنے، کھڑے ہونے، چلنے جیسے جو اعمال ہیں اس کو فائلو جینیٹک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ سے سوال اس میں معروضی میں پوچھا جا سکتا ہے کہ فائلو جینیٹک کیا ہوتا ہے. یہ وہ اعمال ہوتے ہیں جس میں بچے رینگنے، گھٹنوں چلنے، بیٹھنے، کھڑے ہونے اور چلنے جیسے نسلی اعمال سر انجام دیتے ہیں. ہاں جی. ایک اور ہوتا ہے جسے آٹو جینیٹک کہتے ہیں. کچھ ایسے کام ہیں جیسے تیرنا، بائی سائیکل چلا لینا، گیند پھینکنا، لکھنا، یہ تمام انفرادی اعمال جو ہوتے ہیں یہ آٹو جینیٹک کہلاتے ہیں. یعنی آٹو جینیٹک جو ہے نا یہ خصوصی افعال ہے. خصوصی سے مراد یہ کہ یہ تمام لوگوں میں واقع نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سائیکل چلانا سیکھوں گی تو ہو سکتا ہے کہ جو اقصا ہے وہ سائیکل چلانا نہ سیکھے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آٹو جینیٹک ہوتے ہیں یہ خصوصی اعمال ہوتے ہیں، اور جو فائلو جینیٹکس ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں عمومی ہوتے ہیں، سب کے لیے ضروری ہوتے ہیں. کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں، کہیں بات سمجھ نہ آئی ہو تو.